زیادہ تر لوگ سب سے مضبوط، سب سے زیادہ مستحکم اور طاقتور عالمی کرنسیوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو سب سے کم قیمت والی کرنسیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانوی پاؤنڈز، امریکی ڈالرز اور یورو، یہ کرنسیاں سب سے زیادہ مستحکم ہیں۔ ان کرنسیوں کے بارے میں زیادہ تر لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان کرنسیوں کو جاری کرنے والے ممالک کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ مجھے سننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کچھ ایسی کرنسیوں کے بارے میں جانتے ہوں گے جن کی عالمی ویلیو بہت کم ہے۔ اگر آپ کسی ایسی کرنسی کے بارے میں جانتے ہیں جس کی ویلیو بہت کم ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کرنسیوں کے بارے میں کتنا نالج ہے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ہم دنیا کی 10 ایسی کرنسیز کے بارے میں جانیں گے جن کی عالمی ویلیو بہت کم ہے۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر دنیا کی کمزور ترین کرنسی کمبوڈین ریل ہے۔ کمبوڈین ریل بہت سارے ممالک میں استعمال ہوتی ہے۔ کمبوڈین ریل جنوبی مشرقی ایشیا میں ایک بادشاہی ریاست کی کرنسی ہے۔ یہ مونیٹری یونین 1995 میں انڈو چائنیز پیاسٹر کو تبدیل کرنے کے لیے جاری کی گئی تھی۔ اصل میں ریل کی شرح مبادلہ بہت کم تھی اور وہ مقامی لوگوں میں مقبول نہیں تھی اور مقامی لوگ غیر ملکی کرنسیوں کا استعمال کرتے تھے۔ بہت سی کمبوڈین اب ادائیگیوں کے لیے امریکی ڈالر کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی کرنسی کی قدر میں مزید کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک امریکی ڈالر کی قیمت 4065 کمبوڈین ریل کے برابر ہے اور ایک پاکستانی روپیہ 14.51 کمبوڈین ریل کے برابر ہے۔ اس کرنسی کا کرنسی کوڈ KHR ہے۔ نمبر 9، کولمبین پیسو۔ کولمبین پیسو ریپبلک آف کولمبیا کی انٹرنیشنل کرنسی ہے۔ کولمبیا میں جب اسپینش حکومت تھی تب کولمبیا میں اسپینش کرنسی کا استعمال ہوتا تھا۔ جب کولمبیا اسپینش سے آزاد ہوا تب کولمبیا میں اس کرنسی کو 1810 میں متعارف کروایا گیا۔ اس وقت کولمبین پیسو کی ویلیو فرانسیسی فرینک، برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ اور امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ 1980 کے بعد جب ایک امریکی ڈالر 50 کمبوڈین پیسو کے برابر ہوا تب سے کمبوڈین پیسو کی ویلیو میں کمی آئی ہے۔ آج کولمبین پیسو کی ویلیو اپنے ریلیز کے بعد سے تقریباً 300 گنا کم ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں ایک امریکی ڈالر 4526 کولمبین پیسو کے برابر ہے۔ اگر اس کو پاکستانی کرنسی کے ساتھ دیکھا جائے تو پاکستانی ایک روپیہ 16.59 کولمبین پیسو کے برابر ہے۔ اس لیے یہ آج کے دور میں سب سے لوئسٹ کرنسی کی لسٹ میں دنیا کے 9ویں نمبر پر ہے۔ نمبر 8، پیراگوئیان گورانی۔ پیراگوئے جنوبی امریکہ کا دوسرا غریب ترین ملک ہے۔ اس ملک نے مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری وغیرہ کو یکجا کر کے تباہ کن معاشی بدحالی کا سامنا کیا ہے۔ ویسے تو پیراگوئے ایک زرعی مملکت ہے اور یہ ملک کپاس اور سویابین برآمد کرتا ہے، لیکن یہ اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی کرنسی کی ویلیو اتنی کم ہے کہ یہ ملک لوئسٹ کرنسی ممالک کی لسٹ میں انٹرنیشنل طور پر 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ ایک امریکی ڈالر 7128 پیراگوئیان گورانی کے برابر ہے۔ اس ملک کی کرنسی کو PYG سے شو کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد پیراگوئیان گورانی ہے۔ پاکستانی ایک روپیہ 25.54 PYG کے برابر ہے۔ نمبر 7، فرینک گونین۔ پہلا فرینک گونین 1959 میں متعارف کروایا گیا تھا۔ منی فرینک 1، 5، 10 اور 25 کے سکوں میں متعارف کروائے گئے تھے۔ یہ سکے ایلومینیم اور کانسی کے بنے ہوئے تھے، جبکہ بینک نوٹوں میں 50، 100، 500، 1000، 5000 اور 10000 کے نوٹ شامل تھے۔ اس ملک کی کرنسی کا سمبل GNF ہے اور اس کرنسی کا نک نیم نون ہے۔ اگر اس ملک کے قدرتی ذخائر گولڈ، ڈائمنڈ اور ایلومینیم کو دیکھا جائے تو اس ملک کی کرنسی کی قیمت ویلیویبل ہونی چاہیے تھی، مگر مہنگائی، کرپشن اور تعلیمی سہولیات کا میسر نہ ہونا یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی کرنسی دنیا کی 7ویں لوئسٹ کرنسی ہے۔ ایک امریکی ڈالر 8609 GNF کے برابر ہے اور اس ملک کی کرنسی کو پاکستانی کرنسی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پاکستانی کرنسی کی ویلیو اس سے 30 گنا زیادہ ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ 30.30 GNF کے برابر ہے۔ نمبر 6، ازبکستان۔ اس ملک میں سم کا استعمال ہوتا ہے۔ جب ازبکستان پر رشیا کی حکومت تھی تب بھی اس ملک میں سم کا استعمال ہوتا تھا، مگر 1994 میں ازبکستان میں ایک اور سم کو متعارف کروایا گیا جو پرانے سم سے 1000 گنا زیادہ تھا۔ اگر کسی کے پاس 1000 پرانے سم ہوتے تو وہ مل کر ایک نیو سم کی ویلیو دیتے تھے۔ سم جیسا کہ آج موجود ہے، اس کو
1993 में इस्तेमाल किया गया था। इस वक्त रूस में रूसी रूबल चलता था, मगर शाम इसके बरक्स अज़रबैजान की सरकारी करेंसी थी। दरअसल शाम अकेली ही करेंसी थी, इसके मजीद सिक्के या फिर नोट नहीं मुतारिफ करवाए गए थे क्योंकि ये खुद पुराने 1000 समों के बराबर था। इस मुल्क की करेंसी का कोड UZS है। आज के दौर में अगर 11,403 UZS हो तो एक अमेरिकी डॉलर के बराबर वैल्यू बनती है। अगर पाकिस्तानी करेंसी के साथ देखा जाए तो एक पाकिस्तानी रुपया 40.15 UZS के बराबर है। नंबर 5, इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया सबसे पहले 13 अक्टूबर 1946 में एक ऐलान के जरिए जारी किया गया था। इंडोनेशिया रुपया, जिसे RP की अलामत से जाहिर किया जाता है, सेवरन रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की ऑफिशियल करेंसी है। इस करेंसी को इंडोनेशिया की सेंट्रल बैंक एथोराइज्ड और इशू करती है। बाज़ लोग इस करेंसी के लिए पीक का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तिलाही मतलब है सिल्वर। लफ्ज रुपया संस्कृत ज़बान के लफ्ज रुपीका से निकला है। इसका मतलब भी सिल्वर है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग मार्केट में इंडोनेशिया रुपया को IDR से नामजद किया जाता है। इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडोनेशिया। पुराने नोटों की कीमत कम होने की वजह से हुकूमत के फरमान पर इंडोनेशिया की बैंक ने 5 सितंबर 2016 में 1000 से 100,000 रुपए तक के 7 नए नोट जारी किए। इंडोनेशिया मशरकी एशिया की इकोनॉमिकली स्टेबल और तरक्की याफ्ता मुमलिकत है, ताहम इसके पैसे की शरह मुबादला बहुत कम है। मुल्क की रेगुलेटरी अथॉरिटीज करेंसी को मजबूत करने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें सिर्फ मामूली तब्दीलियों का बायस बनी है। आज के दौर में एक अमेरिकी डॉलर 14,946 इंडोनेशियन रुपया या IDR के बराबर है। अगर पाकिस्तानी फ़र्क देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपया 52.61 इंडोनेशियन IDR के बराबर है। नंबर 4, लोआ और लोटियन किप्स। लुअस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी लोआ लोटियन किप्स है। लुअस पर पहले फ्रांस की हुकूमत थी। इस वक्त 1947 में इस मुल्क में इंडोनेशियन पियास्टर को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 4 साल बाद लुअस फ्रांस से ऑफिशियली आजाद हो गया। 1952 लुआ और लुटियन किप ऑफिशियली लुअस की करेंसी बनी। इस मुल्क की करेंसी का कोड LAK है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये वो वाहिद करेंसी है जिसकी कदर में कमी नहीं हुई। 1952 में जारी होने के बाद ये करेंसी लगातार मजबूत हुई है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अपनी वैल्यू को बढ़ा रही है। दोस्तों, 2023 में एक अमेरिकी डॉलर 17,274 लुआ और लुटियन किप्स के बराबर है और जबकि पाकिस्तानी एक रुपया 62.02 लोटियन किप के बराबर है। नंबर 3, सीरालियोन। सीरालियोन अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब मुल्क है जिसने बहुत से संगीन इम्तिहानात को संभाला है, जिसकी वजह से मकामी रकम की कदर में कमी वाक़या हुई है। हाल ही में वहाँ एक जंग हुई है और महलिक अबूला वायरस इस मुल्क में बार बार फैल रहा है। इस मुल्क की करेंसी 1964 में जारी की गई थी, मगर आज के दौर में लियोन की गवर्नमेंट ने उस मुल्क की करेंसी को तब्दील करने का फैसला किया है। पुराने नोटों को नए नोटों में बदल दिया जाएगा जिसे न्यू लियोन कहा जाएगा। ये एक न्यू लियोन पुराने 1000 लियोन के बराबर है। दोस्तों, एक अमेरिकी डॉलर 22,418 SLL के बराबर है। वहीं एक पाकिस्तानी रुपया 69.30 सीरालियोनियन के बराबर है। नंबर 2, वियतनाम डोंग। द सेकंड चीपेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इज द वियतनाम डोंग। दोस्तों, पहले वियतनाम पर भी फ्रांस की हुकूमत थी और उस वक्त वियतनाम में इंडो चाइनीज पियास्टर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था। जब साल 1945 में वियतनाम ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की तो वियतनाम के पास यूज़ के लिए कोई करेंसी न थी। दोस्तों, वियतनाम करेंसी की हिस्ट्री बहुत प्राउड है। 1945 में वियतनाम के नोट की एक जानिब अंकल हू की तस्वीर और दूसरी तरफ वियतनाम का पॉलिटिकली नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम लिखा हुआ था। इस किस्म की करेंसी को आमतौर पर अंकल कैश या फाइनेंशियल कैश कहा जाता था। ताहम 1951 में नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम की बुनियाद रखी गई। इस वक्त बैंक ऑफ वियतनाम ने 100, 200, 500, 1000 और 2000 के नोट जारी किए और ये नोट बगैर सिक्कों के गर्दिश करते रहे। आज के दौर में वियतनाम की करेंसी को डोंग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम की करेंसी का कोड VND है। 2023 में एक US डॉलर 23,380 VND के बराबर है और एक पाकिस्तानी रुपया 82.39 वियतनामी डोंग के बराबर है। वियतनाम आज भी मरकजी मैशियत से मार्केट तक अपने मुश्किल रास्ते पर गामजन है और नतीजतन आज इस मुल्क की करेंसी की कदर बहुत कम है। इस वक्त डोंग दुनिया की गरीब तरीन करेंसी में दूसरे नंबर पर है। ताहम माहिरीन का कहना है कि वियतनाम की हुकूमत सही रास्ते पर चल रही है और जल्द ही अपने पड़ोसी ममालिक के बराबर आ सकती है।
नंबर 1 ईरानियन रियाल। द चीपेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इज द ईरानियन रियाल। इस मुल्क की करेंसी की कदर में कमी 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद शुरू हुई, जब बहुत सारे कारोबारी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मुल्क छोड़ गए। इसके बाद ईरान इराक जंग आई और मुल्क के एटमी प्रोग्राम की वजह से मुल्क पर इक़्तिसादी पाबंदियां लग गई। ईरानी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए गैर मुल्की करेंसी तक रसाई को भी महदूद कर दिया, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट में नुमाया इजाफा हुआ। इस सब ने मैशियत को नुकसान पहुंचाया और करेंसी की कदर में तकरीबन 400% की कमी वाक़या हुई। 2015 में ईरानी हुकूमत ने पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, चीन, रूस और जर्मनी के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किए। इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट ने सूरत हाल को बहुत बेहतर किया और मकामी करेंसी को मुस्तकम किया। ताहम 2018 में अमेरिका ने दावा किया कि ईरान अपनी जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इस पर पाबंदियां तेज कर दी गई, जिससे आलमी अजनास की मंडियों तक मुल्क की रसाई महदूद हो गई। ईरान अब अपना पेट्रोल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी सालाना 70% आमदनी थी। इस वजह से इसने अपने कौमी बजट में एक अहम खसारा पैदा किया। मई 2020 तक ईरान को महंगाई का सामना करना पड़ा और ईरान की करेंसी में मजीद 600% की कमी हुई। इसलिए हुकूमत ने रियाल को तुमान में तब्दील करने और इसमें से 4 सिफर कम करने का फैसला किया, यानी 10,000 पुराने रियाल को 1 तुमान में तब्दील करने का हुक्म दिया गया। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है और इस करेंसी का करेंसी कोड IRR है। एक अमेरिकी डॉलर आज के दौर में 5,14,000 ईरानी रियाल के बराबर है और अगर पाकिस्तानी रुपए की बात की जाए तो एक पाकिस्तानी रुपया 148.42 ईरानी रियाल के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपये में ईरान का विजिट कर आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर यहां तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।